Is the slide visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In the last lecture, we have studied basic counting principle and we have seen some examples of counting. Today we will discuss pigeonhole principle. The pigeonhole principle in simple word is shown in the slide. If k is a positive integer and k plus 1 or more objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing two or more of the objects. This is one generalized statement. K positive integers and k plus 1 or more objects are to be placed into k boxes. Then there is at least one box containing two or more of the objects. A simple statement is given here, but it is useful to solve many different kinds of problems. Let us see the principle or theorem of pigeonhole principle in other words. I'm writing it here. If n pigeons are assigned to m pigeonholes and m is less than n, then at least one pigeonhole contains two or more pigeons. The problem discussed was there were some pigeons and pigeonholes. Then one pigeon goes into one pigeonhole. What if number of pigeons are greater than number of pigeonholes? And therefore, the principle is given a name, the principle of pigeonhole or the pigeonhole principle. So this is simple thing actually. We will write its proof. The proof is by contradiction. It is simple to understand. Suppose each pigeonhole contains at most one pigeon. Suppose each pigeonhole contains at most one pigeon. Then m pigeons will be accommodated in m pigeonholes. One pigeon in each pigeonhole. But m is less than n. Number of pigeonholes are less than n. So not all pigeons have been
assigned pigeonholes. And this is contradiction. That means there will be at least one pigeonhole that can have two or more pigeons. So this is the principle of pigeonhole. Let me explain again. Suppose we have n number of pigeons and m number of pigeonholes. Then we have to accommodate these pigeons into pigeonholes. For example, suppose we have 8 pigeons and 7 pigeonholes. Then suppose these are the pigeonholes, 7 pigeonholes. So one pigeon will be accommodated here, then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth, then seventh. One is remaining. So that one eighth pigeon may be accommodated in this hole, or in this pigeonhole, or in this pigeonhole, or in this pigeonhole, or in this pigeonhole, or in this, or in this. So there will be at least one pigeonhole that will contain 2 pigeons. This is a simple pigeonhole principle. Hence, we can say that there is at least one pigeonhole which contains 2 or more pigeons. You will understand this principle when we will study the examples. Actually, when we are reading this principle and discussing the proof, you will think that what is the big thing in this? कि इतने ऑब्जेक्ट्स है, इतने अकोमोडेशंस है, उनको उस वहां पर रखना है, तो जितने बचेंगे उसमें से कुछ तो भी कहीं पर तो अकोमोडेट हो जाएंगे. तो ये कौन सा बड़ा प्रिंसिपल है ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये सिंपल प्रिंसिपल is used to solve many different kinds of problems. For example, see the example here. Among any group of 367 people, there are 367 people in the group. There must be at least 2 with the same birthday, because there are only 366 possible birthdays. एक साल में 365 days होते हैं. ओके, तो अगर हमने 365 days कंसीडर किए तो 0 to 365 ऐसी नंबरिंग कंसीडर कर सकते हैं. तो 0 to 355 366 होते हैं. कभी कभी लीप ईयर आ जाता है तो 29 फरवरी भी आ जाता है, इसलिए 365 ने 366 कंसीडर किया है. तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी डेट रिपीट हो रही है, बर्थडे रिपीट हो रही है, तो वो 366 होंगे. तो कितने पीपल होंगे ग्रुप में कि एटलीस्ट 2 were born in the same year, same month and same day. Second example is in group of 27 English words. There must be at least 2 that begin with the same letter. 27 English words हैं जो अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट किए गए हैं. तो उनमें से हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स अगर अपर केस लेते हैं तो वो 26 लेटर्स है. तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 words in the group will begin with the same alphabet. We will see one example here.
You can write down this example in your notebook. If 7 colors, are used to paint 50 bicycles, show that at least 8 of them will be of same color. See this example. If 7 colors are there and 50 bicycles are there, we want to paint 50 bicycles. अगर यहाँ पर हमें पिजन और पिजन होल को रिप्रेजेंट करना है तो कलर्स क्या आएंगे? पिजन या पिजन होल्स? यस, पिजन होल्स, ये आएंगे पिजन होल्स। और बाइसिकल्स क्या आएंगे? पिजन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट्स आएंगे। तो हमारे पास अगर 7 कलर्स है तो समझो हमारे कलर्स के नाम है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इतने कलर्स हैं। और 50 बाइसिकल्स है तो बाइसिकल नंबर 1 to 50 ऐसे हमने कलरिंग स्टार्ट किया। तो सपोज 1 बाइसिकल C1, फिर 1 C2, 1 C3, 4, 5, 6, 7, एक टर्न हो गई। फिर यहाँ पर आएंगे 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ओके। फिर 3, 3, 3, 3, फिर 4, 4, 4, 4, फिर 5, 5, ऐसे 7 साइकिल्स एक एक कलर में आएंगे। 7 साइकिल C1 कलर में, 7 साइकिल C2 कलर से पेंट होंगी, 7 साइकिल C3 कलर से पेंट होंगी, वैसे ही 7 साइकिल C7 कलर से पेंट होंगी। तो एक बच जाएगी क्योंकि 7 into 7 49 हो जाता है। तो एक बच जाएगी। वो जो बची हुई साइकिल है वो इन 7 में से किसी तो भी एक कलर से पेंट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज 5 नंबर के पेंट से हमने 7 की जगह पर 8 साइकिल्स पेंट की है। तो इसका मतलब यही है कि अगर 50 साइकिल है और 7 कलर है तो एटलीस्ट 8 of them will be of same color. So कैसे प्रूव करेंगे इसको? We will write it like that. Let colors denote pigeonholes. Let us treat it as M. And bicycles, let us treat it as N. Bicycles denote pigeons. And pigeonholes is less than pigeons. Colors less than bicycles, or M is less than N. So by principle of pigeonhole, we divide the bicycles by number of bicycles by number of pigeonholes, that is 50 by 7. We come to know that it is equals to 7 with 1 remainder. So we can say that 7 bicycles, each of 7 colors.
and remainder one will be a color from the seven colors है हमारे पास. Therefore 8 bicycles may have a same color. So we can prove this using this method. Okay. So this is a principle of pigeonhole. We can use generalized principle so that treats n objects and k boxes. Then we can claim that at least one box contain at least n upon k objects. That principle is called as the generalized pigeonhole principle. You can treat it as theorem 2. You write down this principle also. The title of the principle is the generalized pigeonhole principle. And the principle is if n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least n upon k objects. So this is generalized principle और generalized pigeonhole principle. n ऑब्जेक्ट्स है, k बॉक्सेस है, तो वहां पर एटलीस्ट एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें कम से कम n by k ऑब्जेक्ट्स होंगे. अब पिछले प्रिंसिपल में हमने क्या लिखा था यहाँ पर, अगर k ऑब्जेक्ट्स हैं और k प्लस वन बॉक्सेस है और k ऑब्जेक्ट्स है, तो कोई तो भी एक बॉक्स होगा जिसमें दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे. और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एटलीस्ट एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें n by k ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो बॉक्सेस बचे हैं उनमें n by k से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. Okay, so we can say that if n pigeons are assigned to m pigeonholes and m is less than n, then at least one pigeonhole contains two or more pigeons. This is the pigeonhole principle. And if n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing at least n by k objects. This is generalized pigeonhole principle. We will discuss some more examples. So let me add some slides here. We will see some simple examples and then we will go for that. You write down this example in your notebook. Show that in a group of 50 students, at least
5 are born in same month. फिफ्टी स्टूडेंट्स का ग्रुप है और हमें पता है कि 12 मंथ होते हैं। तो इन 12 मंथ में एवरी स्टूडेंट वाज बोर्न। तो हमें शो करना है कि ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं इनमें से एटलीस्ट कम से कम 5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एक ही मंथ में बॉर्न हो। Show that in a group of 50 students, at least 5 are born in the same month. Okay, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हो गए स्टूडेंट और बॉक्सेस हो गए मंथ्स। 50 स्टूडेंट्स 12 मंथ्स। तो हमें ये कैसे बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 5 या एटलीस्ट 6 or at least 7 something. So how we can show this? Can any one of you suggest how we can show? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? Dividing the student by the month. Okay, so 50 को आपके अनुसार 50 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? Means 4 student आएंगे means each month में और 2 remaining होंगे। तो 2 जो है वो एक कौन से भी मंथ में जा सकते हैं, या तो 2 मंथ में भी जा सकते हैं। मीन्स एक मंथ में 5 या एक मंथ में 6 स्टूडेंट आ जाएंगे। ओके, अब देखो मैं बॉक्सेस बनाती हूँ। यहाँ पर आपने क्या बोला कि ये बॉक्स है, सपोज ये मंथ है, तो ये कितने मंथ है हमारे पास? 12 है। 12। तो इसमें कितने आएंगे? एक बॉक्स में 4, दूसरे में 4 और इसमें 4, तो ये कितने हो गए? 48। ओके, तो 2 बच गए। तो ये जो 2 है वो एक तो एक या 2 ऐसे आएंगे, ऐसे बोलना है ना आपको? हाँ। ओके, करेक्ट। लेकिन हमें 2 नहीं दिखाने हैं, हमें एक ही दिखाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है? 5 आर born in same month। मतलब ये जो 2 बचे हुए स्टूडेंट हैं इनमें से किसी भी एक मंथ में आ जाएगा। सपोज इसमें आ गया, और जो ये एक बचा है ये इनमें से किसी मंथ में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द वे वी नो इट। ये तो हमें पता है। अब लिखेंगे कैसे इसको? So there are 12 months, means 12 pigeonholes. Okay, so let us write it like this. There are n equals to 12 months, or you can say pigeon holes, and 50 pigeons है या स्टूडेंट्स है। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमें लिखना है कि हमें पता है कि कुछ तो भी करके रिमाइंडर आता है। तो अगर 12 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स है, इन 12 मंथ्स में कुछ के स्टूडेंट्स और के ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो हम ये के नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो k इंटू 12 बॉक्सेस में आ गए और कुछ तो बचेंगे। ओके, तो कितने बचेंगे हम एक ही कंसीडर करते, एक बचेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा k ऑब्जेक्ट्स एंड k बॉक्सेस एंड k+1 पिजन्स, तो ये हमारा 12k + 1 हो गया इक्वल्स टू 50 आ गया। ओके, सो हम क्या करेंगे इसको k इंटू 12 और ये 1 है, ये इधर लेकर जाएंगे, सो ये हो जाएगा 50 - 1, ये हो जाएगा हमारा 49, k इंटू 12 इक्वल्स टू 49, सो k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 49/12। अब इसमें हम यस ये अब इसका डिवीजन 4 हो जाएगा हमारा क्वोशंट और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, isn't it? So रिमाइंडर कितना आ गया? 16 नहीं ना, 1 16 1 आया था। 1 ये 49 है, 12 इंटू 4 आर 48, तो 48 गए तो एक ही रिमाइंडर आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एटलीस्ट ये जो है क्वोशंट मतलब k की वैल्यू जो हमारी 4 है +1 इक्वल्स टू 5, ये क्या है हमारा k + 1, तो ये 1 एक्चुअली रिमाइंडर है, आप इसको k + r बोल सकते हैं, k + r students are born in same month. This is the way we can show. At least 5 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं 50 के ग्रुप में कि जो एक मंथ में बॉर्न हुए हैं। एटमोस्ट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट तो होंगे ही होंगे। ओके, shall we go for next example? Yes ma'am. अब एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम प्रिंसिपल ऑफ पिजन होल अंडरस्टैंड करने के लिए लेंगे। ये है हाउ मेनी स्टूडेंट्स must be in a class to guarantee that at least 2 students receive same score. How many students must be in a class to guarantee that at least 2 students receive same score? अभी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स हमें निकालने हैं, कितने स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्लास में कि जो स्कोर है सबको अलग अलग आ रहा है, लेकिन कोई तो भी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर सेम आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम? पहले तो हम मॅडम हाँ स्कोर लागेल ना आपल्याला किती पैकी आधी ओके, आपण जर 100 मार्क्स घेतले, सपोज one paper then or the examination 101 one student subject scores 100. ओके, अगर 100 स्कोर्स है तो कितने स्कोर्स होंगे?
101 स्टूडेंट। यस करेक्ट, क्योंकि किसी को 0 भी मिल सकता है, किसी को 1 मिल सकता है, किसी को 2 मिल सकता है, किसी को 50 मिल सकता है, किसी को 80 मिल सकता है, किसी को 95 मिल सकता है, किसी को 100 मिल सकता है। तो स्कोर्स होंगे हमारे 0 से 100 तक। तो ये टोटल कितने स्कोर्स हैं हमारे? 101 स्कोर्स। तो अगर 101 स्कोर्स है तो कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको यूनिक स्कोर मिल सकता है? 101 स्टूडेंट्स होंगे जिनको यूनिक स्कोर मिल सकता है। तो अगर 102 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स को सेम स्कोर चाहिए तो कितने स्टूडेंट चाहिए हमें? एटलीस्ट 102। 102 exactly correct. So we can write it like this. We need, so to guarantee, we need at least 102 students so that 2 students score same marks. अगर हमारे पास 1 से 4 स्कोर है, 1 से 4 स्कोर है तो कितने स्टूडेंट्स मिनिमम लगेंगे हमें? तो अगर हमें ऐसे ड्रॉ कर 6 कैसे? 0 ये 2 स्कोर 4 वाला 5 ये 2 स्कोर वाले और ये 3 1 2 और 4 4 स्कोर वाले। 5 एक स्टूडेंट यहाँ पर, ये दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर, ये तीसरा स्टूडेंट यहाँ पर, एक चौथा स्टूडेंट यहाँ पर। तो 2 स्कोर सेम करने वाले, सपोज 2 मार्क्स स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो ये आ गया यहाँ पर। तो एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स हमें लगेंगे जो 2 students will receive same score. ओके, अब मैं आपको देती हूँ एक एग्जांपल, आप सॉल्व करो ये। फाइंड मिनिमम number of students in class so that 2 students were born in same month and date. मंथ भी सेम और डेट भी सेम। Find minimum number of students in a class so that 2 students were born in same month, same date. कोई बोल सकता है आंसर इसका? थ्री सिक्सटी सिक्स और Yes, 365। यस करेक्ट आंसर। एक्चुअली पहले हमें मंथ का निकालना पड़ेगा और फिर हमें डेट का निकालना पड़ेगा। तो अगर मंथ का निकालेंगे हम, सेम मंथ में आने वाले, 13। तो हमारे पास 12 मंथ्स है, तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? 13 करेक्ट। और सेम डेट चाहिए तो ईयर में कितने कितने डेट्स होते हैं? 365 डेज होते हैं। 365। तो 2 स्टूडेंट की एक ही बर्थ डेट होने के लिए कितने स्टूडेंट्स लगेंगे? 366 स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ये ले लो, ये अगला एग्जांपल है।
what is the minimum number of students required in a discrete mathematics class to be sure that at least 6 will receive the same grade. There are 5 possible grades A, B, C, D and F. आपको निकालना है minimum number of students that will receive same grade. 6 students, at least 6. 6 students. 26. Yes, answer 26. correct. किसने बोला? नाम बताओ. रितेश. रितेश. अजून कोणाचा दुसरा आन्सर आहे का? रितेश, येस मॅम. तुझा बीएससी ला कुठला सब्जेक्ट होता? मॅम BCA झालाय. बीसीए. ओके. Is there anyone in our class from mathematics background? मॅम एक जण आहे आसिफ शेख म्हणून. ओके. बीएससी मॅथ्स होता का त्याचा? हो. ओके. आला नाही का तो आज क्लास मध्ये? आसिफ, are you there? ओके. ठीक है. तो रितेश, can you explain how you come to know that there are 26 minimum number of students required? मॅम तिथे 5 ग्रेड आहे. A, B, C, D and F. ओके. आणि आपल्याला ऍटलिस्ट 6 स्टुडंट पाहिजे की ज्यांची सेम ग्रेड हवी. ओके. सो आपण आधी प्रत्येक मीन्स प्रत्येक ग्रेड 5-5 स्टुडंटना दिला. मीन्स A ग्रेड 5 स्टुडंटला, B 5. आणि आपल्याला ऍटलिस्ट एक म्हणजे ग्रेड असा पाहिजे की तो ऍटलिस्ट 6 स्टुडंट ओके. यायला पाहिजे. तर आपण कोणत्या पण एका ग्रेडला एक स्टुडंट ऍड करून घेऊ तर त्यांची ऍडिशन 26 येते. Yes, correct. मी असं काढलं. Very good, Ritesh. Same answer, and you explained correctly how we can write down the minimum number of students needed to ensure that at least 6 students receive the same grade is the smallest integer n such that n by 5 equals to 6. This is generalized pigeonhole principle. The smallest such integer is n equals to 5 into 5 plus 1, that is 26. So if we have 25 students, it is possible for there to be 5 who have received each grade so that no 6 students have received the same grade. Thus, 26 is the minimum number of students needed to ensure that at least 6 students will receive the same grade. Now, take these 2 examples, write in your notebook. This is the examples for homework. Show that in any set of 6 classes, each meeting regularly once a week on a particular day of the week, there must be 2 that meet on the same day. Assuming that no classes are held on weekends. Saturday and Sunday is considered as weekend. And the second example, show that if there are 30 students in a class, then at least 2 have last name begin with the same letter. So solve these 2 examples as an homework and post the answers in our group.
If any one of you have difficulty in understanding, can ask me now, or we will go for our second lecture on Python lab. Shall we proceed? Yes, ma'am. Okay. Yes. लिहायचं बाकी आहे का? मॅम सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय फाइंड करायचे? Okay. In the previous example, what we found here, minimum number of students, grade होते ABCDF आणि minimum number of students find out केले आपण, ते होते 26. आता ह्या ठिकाणी काय म्हटलंय की 30 स्टुडंट्स आहे. ओके, 30 स्टुडंट्स आहे आणि at least 2 have last name. So 30 students will have 30 surnames or last names. Yes. And so there are 26 alphabets. हो. So 26 alphabets आहेत आणि 30 students आहेत. तर आपल्याला शो करायचं आहे की at least 2 have last name that begin with same letter. At least 2. प्रूव्ह करायचं का फक्त? हा, शो करायचंय. हो. जसं आपण इथे मागे केलं ना एक एक्झाम्पल. हो हो. असं दोन प्रकारे एक्झाम्पल विचारले जातात की शो करायचं किंवा फाइंड आउट करायचं. तर ह्या ठिकाणी शो केलंय ते तसंच एक्झाम्पल बॉर्न इन द सेम मंथ आणि अगोदर एका ठिकाणी आपण डेट्स आणि मंथचं केलं. तुम्ही मागच्या याच्यामध्ये हे जे केलं फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम स्टुडंट्स केलं आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये 5 बॉर्न इन द सेम मंथ, म्हणजे एकाच प्रकारचं एक्झाम्पल दोन प्रकारे विचारलेलं आहे. तसं हे एक्झाम्पल नंबर ऑफ स्टुडंट्स फाइंड आउट केले आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये शो करायचं की 30 स्टुडंट्स इन अ क्लास at least have 2 students begin with the same letter, surname that begin with the same letter. Okay? Okay, ma'am. Okay. So let us stop it here. I'm sharing. Is this slide visible? I think no. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Wait. Now, is this visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we have to discuss on lab. We are starting our practicals on Python, lab on Python programming. I suggest you one site, how to think like a computer scientist, interactive edition. गूगल में आप ये URL देकर देखो, 2-3 साइट्स पर ये जो बुक है, एक्चुअली ये हाउ टू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इंटरैक्टिव एडिशन, ये बुक है, ये 2-3 साइट्स पर मिलता है. तो हमारा मैक्सिमम सिलेबस जो थ्योरी में है आपको यहाँ से मिल जाएगा. सिंपल लैंग्वेज है और कोड भी 2-3 सेंटेंसेस से डिस्क्रिप्शन है, बाकी कोड है और नीचे कोड हम वहीं पर रन भी कर सकते हैं और हम खुद का कोड भी लिख सकते हैं वहां पर. ऐसा ये इंटरैक्टिव वेबसाइट है.
आप लिख लो इसको, हाउ टू थिंक लाइक अ कंप्यूटर साइंटिस्ट इंटरैक्टिव एडिशन। पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी जगह ये, और सिलेबस भी है यहाँ से, बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। So now this is our lab course. We have to discuss 17 examples. Develop a program to understand the control structures of Python. Then learn different types of structures, list, dictionary, tuples, functions, object-oriented programming, then data structures, regular expressions, exception handling, then different types of exceptions, then anonymous functions using lambda functions, then functional programming such as filters and reduce, modules, then image insertion, data frame, GUI programming using Tkinter, web application, and two more, MySQL and Django framework is also given. आपका क्लास में कहाँ तक आया है? सिलेबस कहाँ तक आया है ये प्रोग्राम्स करने के लिए? मैम वो मत पूछो। वो मत पूछो। कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? स्ट्रिंग चल रही है मैम। स्ट्रिंग चल रही है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं अभी तुम्हारे। ओके, so what I do today is I will explain first assignment, develop program to understand the control structures of Python. Okay, I have Python 2.7 installed, a basic. I do not use any framework or any IDLE. I use a basic IDLE. जो पाइथन इंस्टॉल करते हैं उसका जो IDLE आता है उसी में मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, वहीं पर रन करती हूँ। तो आपके ये सिंटैक्सिस फ्रेमवर्क के हिसाब से कोड कैसे रन करते हैं, ये फ्रेमवर्क के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आप लोगों में से कितने लोगों के पास लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, और कितने लोग मोबाइल यूज करने वाले लैब के लिए? एक फॉर्म बना दूंगी मैं। हो सकता है तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, किसी के पास लैपटॉप होगा, किसी के पास डेस्कटॉप होगा, और किसी के पास मोबाइल होगा। ठीक है, तो तीनों प्रकार के यूजर्स जो है वो ये पाइथन का कोड कर सकते हैं। ये सिंपल है, ऑनलाइन भी होता है, यहाँ पर ऑनलाइन में भी आप कोड टाइप करके रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सच में पढ़ना है और सीखना है तो प्रोग्राम टाइप करके रन करना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा वर्जन, या फिर आप क्लास में क्या यूज करते हैं? 3. What? Python 3. Python 3. ओके, Python 3 वर्जन। और कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं क्या? नहीं मैम। ओके, पाइथन कैडी यूज करते हैं मैम। ओके, तो हम भी कॉमनली एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेंगे या फिर वर्जन डिसाइड कर लेंगे। तो आप बोलते हो तो Python 3 यूज करेंगे हम आगे, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट असाइनमेंट। यहाँ ये जो पहली असाइनमेंट है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके इफ, एल्स, स्विच आता है, लूप्स आते हैं, फॉर, व्हाइल, ऐसे लूप्स आते हैं। तो आप एक ही प्रोग्राम में सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कर सकते हो, या आप अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। आपको पता है कि पाइथन इंडेंटेशन वाली लैंग्वेज है। यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज ले ले, आपने जो भी आज तक पढ़ी हुई है, C++ है, जावा है, C# है, ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं ब्लॉक्स के लिए।
तो इसलिए क्या होता है कि हम कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखे, इधर से उधर टैब दे दे, कुछ भी दे दे, एक के आगे एक लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोड जो होता है वो रीडेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस के लिए पाइथन में इंडेंटेशन ही यूज किया गया। सबसे अच्छी लैंग्वेज है क्योंकि यहाँ का हर एक प्रोग्राम रीडेबल ही होगा क्योंकि इंडेंटेशन यहाँ पर लगता है। फिर यहाँ पर आपको जो मॉड्यूल यूज करना है, जो पैकेज यूज करना है, वो आप यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज इंटरप्रिटेड है या कंपाइल्ड है? इंटरप्रेटेड। ये इंटरप्रिटेड है। इसलिए हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन ऐसा कंपलसरी नहीं है। मेन फंक्शन है, आएगा, वो सिलेबस में आगे आएगा। हम लोग मेन फंक्शन भी लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसे कंपल्शन नहीं है जैसे C++ में होता है कि हम मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी है, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो लाइन आ गई वो एग्जीक्यूट हो गई, जो आ गई वो एग्जीक्यूट हो गई, और जिस लाइन में एरर है वहीं पे रुक जाते हैं। बाकी जो लाइंस, जो स्टॉप की लाइंस है जहाँ पर एरर नहीं है वो एग्जीक्यूट होती है, और फिर जहाँ पर एरर आएगी वहां पर ये कोड रुक जाता है। तो आपको पता होगा 3 टाइप्स की एरर्स आती है पाइथन में। नेम एरर आती है, एक सिंटैक्स एरर आती है, और एक सिमेंटिक एरर आती है। नेम एरर मतलब अगर कोई वेरिएबल लिखा है और उसको डिफाइन नहीं किया है। सिंटैक्स एरर कोई सिंटैक्स हो तो, और बाकी तो फिर सिमेंटिक एरर आती है। ओके, तो हम लोग थोड़े एग्जांपल देखेंगे। तो पहला एग्जांपल जो हमने मैथ्स में पढ़ा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। कोई बता सकता है मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जो हमने मैथ्स में ऑलरेडी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में देखा है। तो वो जो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में हमने देखा था वो था रिकर्सिव वर्जन। वो रिकर्सिव वर्जन आपको बनाना है। मुझे यहाँ पर इटरेटिव वर्जन लिखना है जीसीडी का। कोई बता सकता है? ओके, पहले तो हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, और फंक्शन पाइथन में डिफाइन से करते हैं। ये डीईएफ से हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं, और कोई पैरामीटर हो तो पैरामीटर देते हैं, और ब्लॉक होगा तो कोलन देते हैं। और जहाँ पे कोलन आता है उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट्स ऐसे इंडेंटेशन में देता है, और जो ये फंक्शन का पार्ट नहीं है वो ये इंडेंटेशन में आ जाएगा। ओके, तो हमें ये जीसीडी नाम का एक फंक्शन लिखना है। अब आपको पता है कि 2 पैरामीटर्स आएंगे। जीसीडी याद है ना आपको? कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर। 2 नंबर्स देने पड़ेंगे, फिर कोई तो भी 2 पैरामीटर्स हम यहाँ पास कर लेंगे। पाइथन में डेटा टाइप देना कंपलसरी नहीं है, हम कोई भी वेरिएबल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो उसका डेटा टाइप बन जाता है। तो 2 पैरामीटर्स हमें इस फंक्शन के लिए लगेंगे, और ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, जो वैल्यू हमारा जीसीडी होगा। तो ये फंक्शन के लिए हमें 2 वैल्यूज लगेंगी, एक num1 लगेगा और एक num2 लगेगा। ये दोनों हम यहाँ पर पास करेंगे। आपको पता है कि पहले जीसीडी निकालने के लिए स्मॉलर नंबर ढूंढना पड़ता है, जो हमने अपने मैथ्स के एल्गोरिथम में देखा था। आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नोटबुक में देख लो। याद है आपको जीसीडी कैसे निकाला है? कोई बता सकता है? फैक्टर, नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे पहले। नंबर्स के फैक्टर निकाले थे, मतलब हमने सपोज 8 और 5 था, तो बड़ा नंबर लिया था, इसको हमने बड़े नंबर को छोटे नंबर से मॉड किया था, और जो छोटा नंबर है उसको लिखा था।
ऐसे ही करते गए थे ना? यस। यस मैम, यस। ओके, तो ये जो हमारा कोड है आपके सामने होगा, वो रिकर्सिव वर्जन है। उसको आपको लिखना है, कैसे लिखना है अगले एग्जांपल में आ ही जाएगा। हम इटरेटिव लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो हमें क्या करना है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेना है। हैश मतलब कमेंट है। यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज किया जाता है पाइथन में? इनपुट फंक्शन। यस, इनपुट फंक्शन। ये अगर पाइथन 27 है तो उसमें रॉ अंडरस्कोर इनपुट आता है, और पाइथन 3 होगा या अगले वर्जन होंगे तो इनमें इनपुट आता है। तो इनपुट फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन में हम क्या देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, जो मैसेज होता है। ये इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। यस, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, इंटीजर। तो हमें ये टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर num1 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर लिया, num2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर लिया। तो एक्चुअली ये इनपुट फंक्शन, दिस फंक्शन इज टेकिंग वन पैरामीटर विच इज स्ट्रिंग, और जो भी यूजर ने दिया उसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे और ये num2 में स्टोर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर इनपुट फंक्शन के लिए पैरामीटर है एक स्ट्रिंग जो डबल कोट्स में दी है, और वो जो भी यूजर एंटर करेगा दैट विल बी रिप्लेस्ड हियर एंड देन दैट इज कन्वर्टेड टू इंट एंड num1 में आ जाएगा। अभी हमने जब ये कोड रन किया तो प्रॉम्प्ट आएगा एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने एंटर किया 5, और फिर दूसरा प्रॉम्प्ट आया एंटर सेकंड नंबर। सपोज मैंने एंटर किया 8। अब हमें फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन का नाम है जीसीडी। तो फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम है जीसीडी। पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, ये फंक्शन कॉल है, और ये जो है, जो भी जीसीडी आने वाला है हमें प्रिंट करना है, इसलिए ये मैसेज आ जाएगा द जीसीडी ऑफ, ये डबल कोट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, कॉमा, एक स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल, फिर स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल, फिर स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल, या आंसर ऑफ द फंक्शन है, रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहला एक ए स्ट्रिंग है मैसेज, कॉमा, num1 की वैल्यू है 5, एंड ये दूसरा मैसेज num2 की वैल्यू है 8, ये तीसरा मैसेज, और ये फंक्शन वैल्यू जो कुछ रिटर्न करेगा, सपोज x, जो भी आएगा ये प्रिंट होगा द जीसीडी ऑफ 5 एंड 8 इज x। तो ये फंक्शन है, इसे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ऑलवेज वी डिफाइन अ फंक्शन बिफोर कॉल, सो वी विल डिफाइन फंक्शन लाइक दिस। ये सब कुछ एक ही लाइन में आने वाला है। डिफाइन जीसीडी, और कितने पैरामीटर्स हैं, 2, num1 और num2। तो यहाँ पर हमने x और y लिया, x में num1 की वैल्यू आ जाएगी और y में num2 की वैल्यू आ जाएगी। जब कोड रन कर रहे हैं तो 5 x में आ जाएगा और 8 y में आ जाएगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर ढूंढना है, x स्मॉलर है या y स्मॉलर है। तो इसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, इफ एल्स। कोई बता सकता है कैसे लिखूं मैं? यस मैम। हाँ बताओ। if x is less than y, x is less than y, then colon, colon, x is less, value of x is less, किंवा त्यामध्ये मग आपण देऊ x डिवाइड बाय y, x मॉड्युलो y, x मॉड्युलो y। नहीं, बस ये कोड से हमें क्या ढूंढना है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, x है या y?
then x is smaller. हाँ, तो कैसे लिखेंगे उसको? एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा ना, Print, हाँ वेरिएबल या प्रिंट करेंगे ऑर्डर इक्वल्स टू x, x. Yes. else Else y smaller equal to y. ऑर्डर y, else के बाद भी कोलन लगेगा। Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay, good. If x is greater than y, smaller equals to y, else smaller equals to x. यहाँ पर greater than यूज किया है इसलिए ये y और x ऐसे आया। लेस देन यूज किया होता तो smaller equals to x और smaller equals to y आता। ओके, अब हमें पता है कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। जीसीडी मतलब कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर। इस 5 और 8 का कॉमन डिवाइजर आपको पता है 1 है। कैसे निकाला था वो भी आपको पता है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, जो नंबर हमारे स्मॉलर नंबर तक आता है। ये स्मॉलर क्यों निकाला हमने कि लूप कहाँ तक रन करेंगे। हम ले जाएंगे ये नंबर तक 1 से ये नंबर तक, ये नंबर से ये दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे और जब तक ये डिविजिबल नहीं आते कॉमन नंबर से तब तक हम डिवाइड करेंगे और जब कॉमन नंबर आ जाएगा तो उसको हम जीसीडी बोलेंगे। इसीलिए हमने ये स्मॉलर नंबर निकाला और स्मॉलर नंबर से हम रेंज में ले लेंगे। हमें चाहिए एक्चुअली 1, हमें चाहिए i, ये i जाएगा 1 से स्मॉलर प्लस 1 तक रेंज के लिए। रेंज फंक्शन क्या करता है कि ये इस रेंज में की सारी वैल्यूज लेता है, इसमें ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है, तो हमें स्मॉलर तक जाना है इसलिए स्मॉलर प्लस 1 लेना है। तो i की वैल्यू पहले हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 4, फिर हो जाएगी 5। स्मॉलर हमारा 5 है ना। Yes. तो Yes. 5 होने के बाद जब वो 6 हो जाएगी तब ये हमारा लूप बाहर आ जाए। ओके, तो i की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 अप टू 6 और फिर हम x को i से डिवाइड करेंगे एंड y को भी i से डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाती है, एंड है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो देख लो, पहले हमारा x है 5 और y है 8 और i की वैल्यू है 1। ओके, 1, सो 1 5 डिवाइड बाय 1, रिमाइंडर क्या आ गया? 0. 0 आ Zero. गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, तब ये कंडीशन ट्रू Zero. होती है और तब हमारा जीसीडी आई आ गया। ओके, अभी जीसीडी में 1 है, ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 x को 2 से डिवाइड करते, x है हमारा 5, 5 डिवाइड बाय 2 और 8 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। 1. तो 1 0 है क्या? No. नहीं, नहीं, false condition. यहाँ पर 0 है लेकिन ये नहीं है, तो ये कंडीशन जीसीडी चेंज नहीं करेगी। जीसीडी हमारा आई है जो 1 है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3. यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 2 आ गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर से False. जीसीडी 1 ही रहेगा। फिर आई हमारा 4 हो गया, अभी फिर से रिमाइंडर 1 है, तो जीसीडी की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3. 3 आ जाएगा, मतलब फिर से कंडीशन फॉल्स है, जीसीडी की वैल्यू 1 ही रहेगी। उसके बाद ये 6 आ गया, 6 कर Out of loop. तो ये 0 हो जाएगा, रिमाइंडर पूरा ही नंबर आ जाएगा 5 का। मैम आउट ऑफ लूप हो जाएगा ना 6 को तो।
यस, आउट ऑफ लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो जीसीडी जितना था 1 उतना ही रहेगा, इसलिए हमें आउटपुट मिल जाएगा जीसीडी ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज 1. Got it? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ नंबर. ये भी हमने लिया है रिकर्सिव एल्गोरिथम्स में, याद है आपको? यस. नोटबुक में लिखा होगा तो वो पेज ओपन करो, क्योंकि ये हम रिकर्सिव ही लिखने वाले हैं. जो हमने हमारे मैथ्स के नोटबुक में लिखा है उसी को पाइथन में कन्वर्ट करने वाले हैं. तो वो पेज ओपन करो आप. किया ओपन? आ गया सामने या नहीं? लिखा नहीं है क्या? बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब लिखा नहीं है. ठीक है, यहाँ लिख लेते फिर से. पावर का है ना, पावर रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग ए रेज़ टू एन. लेट मी राइट इट हियर अगेन. हमने ऐसे लिखा था, याद होगा आपको. प्रोसीजर, फंक्शन का नाम था पावर, ए नॉन जीरो रियल नंबर का कॉमा एन नॉन नेगेटिव नंबर और फिर इफ n equals to 0 then power a comma n equals to 1, else power a comma n equals to a into power a comma n minus 1. याद आ गया? अभी सामने है आपके. इसी को पाइथन में कन्वर्ट करना है. फाइंड द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ नंबर. तो ये जो नंबर है, सपोज ये नंबर हमारा a है और पावर n है, तो हमें क्या निकालना है? a रेज़ टू n फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें एक फंक्शन लगेगा पावर. ये फंक्शन के दो पैरामीटर्स होंगे a और n. तो फिर हमें ये दो वैल्यूज रीड करनी पड़ेंगी. ओके. उसके बाद सेम ये फंक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप मुझे बता सकते हो कि स्टेटमेंट दैट आई कैन यूज टू रीड वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ n. ये स्टेटमेंट क्या करेगा, कोई बता सकता है? यूजर से इनपुट लेगा. मैसेज क्या आएगा? मैसेज क्या आएगा यूजर को? एंटर बेस. एंटर बेस. सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया बेस, मतलब दो दिया सपोज. अब मुझे एक्सपोनेंशियल रीड करना है, तो सेम exp इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एक्सपोनेंशियल वैल्यू. सपोज मैंने यहाँ पर 5 एंटर कर दी. अब फंक्शन का नाम पावर ही है, उसे कॉल करना है. कैसे कॉल करेंगे? पावर अगर बेस कॉमा एक्सपोनेंट पावर Base. अंतरा कॉमा एक्सपोनेंट. ओके.
ऐसे। अब इसको प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन में लेना पड़ेगा। हाँ ये हो गया प्रिंट फंक्शन, और जो भी मैसेज आपको देना है वो मैसेज डबल कोट्स में, और ये फंक्शन, कॉमा जैसे कि ये है प्रिंट रिजल्ट कोलन पावर बेस EXP, ये कंप्लीट। ओके, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन, पावर ये फंक्शन। पावर पावर तो कैसे लिखूं, कहाँ पर लिखूं, ऊपर वरती ऊपर कैसे, फंक्शन डेफ डिफाइन करने का कीवर्ड डेफ डेफ पावर 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 बेस ए कॉमा कॉमा एन ए कॉमा A कॉमा B whatever, एन n भी लिख सकते हैं, n लिखते हैं, हमने an यूज किया। तो ये हो गया हमारा डेव पावर बेस EXP। क्या मैं ये यहाँ पर बेस EXP और यहाँ पर बेस और EXP लिख सकती हूँ, या रीडिक्लेरेशन Yes, की एरर आएगी? यस चालेल मॅम नहीं चालेल नहीं क्यों नहीं नहीं। आएगी, रीडिक्लेरेशन की एरर क्यों नहीं आएगी? एक्चुअल नीचे के एक्चुअल है ये स्कोप अलग है, इसका स्कोप अलग है Yes, yes. और इसका स्कोप अलग है। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब क्या करना है, ये लिखना है, if n equals to 0 then power a comma n equals to 1। ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे लिखें, इफ if condition मध्ये if if n equal to 0 कोलन n EXP, एक्सपोनेंट can I write this one, if EXP हाँ equals to 1 then return base, या ऐसे लिखेंगे yes n equals to 0 then power a comma n equals to 1। अब ये आपको याद होगा कि हमने प्रूव कैसे किया था, a कोई भी हो, n की वैल्यू अगर 0 anything raised to ये power 1 0 आता है। equal to 1 वन तो यहाँ पर अगर EXP 1 होगा तो बेस रिटर्न करना है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम है। यहाँ पर क्या था कि हमने same इसको 0 लिखा था और ऑलवेज 1 रिटर्न होने वाला था, लेकिन ऐसे नहीं है ना कि 0 ही आएगा ये हमेशा। अगर 1 आ गया नहीं। तो इसकी वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए ना। तो आप ऐसे Yes. भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, if EXP equals to 1 return base। else में क्या लिखूं, greater than else में आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, नहीं तो फिर दूसरा नेस्टेड else यूज कर सकते हो, नहीं तो ये हमारा चेन कंडीशनल्स है। if के बाद दूसरा if EXP not equals to 1, अगर ये EXP 1 नहीं है, कोई भी दूसरी वैल्यू है, तो बेस इनटू पावर बेस कॉमा EXP माइनस 1। तो ये आ गया रिकर्सिव फंक्शन। ये हमारा सेम है, बेस इनटू पावर a कॉमा n माइनस 1। n की जगह पर EXP लिखा है और ये हमने रिटर्न में दे दिया डायरेक्ट, जो रिजल्ट में आ जाए। तो ये देखकर आप जो हमारा GCD का प्रोग्राम है रिकर्सिव डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? हॅलो हाँ मॅम इथे आपण एक्सपोनंटची व्हॅल्यू सपोज 0 घेतली हाँ तर आन्सर कसं येईल, मीन्स कोणती कंडिशन ट्रू होईल आणि त्याचं एक्झिक्युशन नंतर त्याचा रिझल्ट काय येईल? ह्या ठिकाणी जर एक्सपोनंट 0 घेतला, ओके, म्हणजे बेस 2 घेतला आणि एक्सपोनंट 0 घेतला, बेस 0
सॉरी बेस 2 नाही बेस 2 आणि एक्सपोनंट 0. मग इफ एक्सपोनंट इक्वल टू 1 नो, इफ नाही. एक्सपोनेंट नॉट इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू है. Yes. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ बेस मतलब 2 इनटू और इसकी वैल्यू आ गई -1. ओके, तो ये -1 आने के बाद यहाँ आ जाएगा, फिर से कॉल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. मैम -1 कैसे? यहाँ 0 -1 एक्सप्रेशन -1. 1 minute. Okay. Am I audible? Yes ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी ये जो Yes, ma'am. हमारा जो कोड है, अगर हमने ये exp इक्वल्स टू 1 लिखा और बेस रिटर्न किया, तो जैसे आपने 0 पास कर दिया यहाँ पर, तो इसके लिए ये जो एल्गोरिदम है ये निगेशन में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये Yes. माइनस हो जाएगा. Yes ma'am. और माइनस होने के बाद ये कंडीशन हमेशा रन होती रहेगी. और ये कभी खत्म होगा क्या? Yes ma'am. नहीं होगा नहीं. खत्म, इनफाइनाइट नहीं. लूप में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा ना ये. Yes yes. हाँ. इसके लिए हमें ये 0 लेना पड़ता है. हाँ, एक इफ कंडिशन आपण जर एक इफ कंडिशन बनवली आणखी तर आपण ह्या ठिकाणी एकतर ऍड करून देऊ शकतो, इफ exp इक्वल्स टू 0 और exp इक्वल्स टू 1. तर बेस न रिटर्न करता आपण हेच आपलं स्टेटमेंट इथे टाकू शकतो. आपलं हे जे प्रूफ आहे, दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू. मैथमेटिकल फाउंडेशन में हमने ये प्रूफ करके रखा है कि ये कंडीशन अगर होगी तो ये बेसिक कंडीशन है, तो n की जगह पर हम 1 यूज करेंगे तो कुछ अलग केस है, 2 यूज करेंगे तो कुछ अलग केस है. तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में ये बोला ही गया था कि ये पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर्स के लिए है. यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रेंट दे दिया था कि ये नॉन निगेटिव नंबर्स के लिए है, ये जो प्रॉपर्टी है. और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ये कंडीशन नहीं डाली नॉन निगेटिव्स की, तो ये हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाए. ओके, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये exp इक्वल्स टू 1 और 0 की कंडीशन एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. exp इक्वल्स टू हॅलो मॅम 0. और घेऊन सुद्धा One होणार नाही minute. मॅम पण ते. हॅलो 1 minute. Either we have to change this statement to our algorithm. ये अल्गोरिदम फुल प्रूफ है, इसका हमने प्रूफ भी देखा है. और ये जो अल्गोरिदम यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर एक बग मिल गई. और कंडीशन से आप लिख सकते हो, Hello. प्रॉब्लम मिली है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई स्टेटमेंट हमें ऐड करनी ही पड़ेगी. हॅलो मॅम. हाँ बोला. हॅलो हेलो. मॅम और कंडिशन नाही चालणार ना तिथे इफ कंडिशन मध्ये? चालेल ना. कारण नाही ना मॅम, सपोज एक्सपोनेंट जर 0 आहे तर तो ऑलवेज बेस नाही रिटर्न करणार मॅम, तो ऑलवेज 1 रिटर्न करेल. तो बेस नाही रिटर्न करणार. हा. हे स्टेटमेंट जर तुम्हाला और टाकायचंय तर या बेसच्या ठिकाणी वेगळं रिटर्न करावं लागेल. हे पूर्ण जे स्टेटमेंट आहे ना, हा हा हे मॉडिफाय तो करावं लागेल. म्हणजे पूर्ण एक ब्लॉक बनवावा लागेल, स्पेशल एक ब्लॉक. हा हा
मल्टिपल इफ टाकावे लागतील. म्हणजे हा इफ EXP 1 आहे तर बेस रिटर्न करायचा. इफ EXP 0 आहे तर 1 रिटर्न करायचा. फिबोनाची मध्ये करतो तसं. आणि जर 0 आणि 1 नसला तर 1 करायचा. ओके. Yes, ma'am. ठीक आहे. Let us see the another example. These names I have taken from our attendance. In the previous two examples, we have seen, here we have seen for loop with range. Here we have seen. मैम पेपर दिसत नाही आहे. आता नाही दिसत. नाही मार्क्स आता फॉर लूप आहे स्क्रीन वर. हो दिसतंय. Now we will see the third example in which we want to demonstrate for loop. So here the keyword for, keyword in, and this is list. List. This is list. We know we can give tuple in round brackets, list in square brackets, and dictionary in curly brackets, set also. There is difference between tuple, list, and dictionary. So this one is with square brackets, so that means this is list. So for friend in this list. So this friend is variable. For means for every item from the list. Friend will take first value Aniket, then second value Shital, third value Vishnu, fourth value Bhavin, and fifth value Mohini. Hope all of you are present here. इनमें से कौन नहीं है? ये बाविस्कर है, शीतल बाविस्कर. Yes, ma'am. आहे का तू? हो आहे ma'am. Okay. So here for friend in this list, invite is variable, hi is one string, friend will take one of each value in every iteration, plus this is concatenation operator, this concatenate strings and variables, and this string is please come to my party and print invite. What will be printed? How many statements will be printed? 1 or 5? 5. First 5. statement will be Hi Aniket, please come to my party. second. Hi Shital, please come to my party, like this. And last one. Hi Mohini, please come to meet my party. When item completed or list finished, loop will terminate. So this Terminate. will be our output. 5 times print होगा ना? This is for loop. Now this is an example that demonstrates while statement. In this example, n is one variable which is initialized with value 6. Current sum is a variable which is initialized to 0, and I is another variable which is initialized to 0. While syntax, you know, while expression, then statements are there. This is condition I less than or equals to n, current sum plus equals to I. So initially value of I is 0, less than or equals to 6. Then current sum is 0 plus equals to I, means 0 first time, and then I equals to I plus equals to 1. So I is 0, that will become 1. When loop will terminate, we will get current sum. It will come here again. I is 1 now. This will become 1. Was less than or equal to 6? Yes. Then this will become 1. As it is 1, that is added into 0. Then current sum will become 1.
in this statement and I will become 2. Then 2 less than 6. So finally we are printing value of current sum. What will be printed? 21. Yes, correct. The answer. Simple while statement. Now next is this statement. ये भी while ही है. इसका आंसर आपको मुझे बताना है. n equals to 3029. Count equals to 0. n not equals to 0 तक लाना है. n की वैल्यू है 3029. n की वैल्यू जब तक 0 नहीं आ जाती है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा और जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा. तो कितने इटरेशंस आएंगे? ये इटरेशंस के लिए काउंट यूज किया है. पहले इटरेशंस के लिए काउंट 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन. n इज इक्वल्स टू n/10. ये क्या है? ऑपरेटर पता है आपको ये? डिवीजन. कंप्लीट डिवीजन कुछ तो Division. पॉइंट में फ्लोर नहीं डिवीजन बोलते हैं कि फ्लोर. फ्लोर हाँ, डिवीजन. फ्लोर डिवीजन. यस. क्या है इसका मतलब? सिंपल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या डिफरेंस है? ये इंटीजर में रिटर्न वैल्यू देगा, मींस डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा. ओके, इट राउंड्स अप और इंटीजर देता है. करेक्ट. और फिर हमें काउंट और n प्रिंट करना है और उसके बाद आने वाला है. तो फिर कितने प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे? एक ही आएगा या नंबर ऑफ काउंट है, नंबर ऑफ इटरेशन से उतने आएंगे? कितने प्रिंट स्टेटमेंट्स आएंगे यहाँ पर? दो एक से ज्यादा आएंगे या 2 एक ही आएगा? 2 दो आएंगे. मे बी. एक से तो ज्यादा आपको आएगी. पता है कि ये प्रिंट है और कॉमा दिया है तो ये लिस्ट काइंड ऑफ आउटपुट आएगा और यहाँ पर काउंट की वैल्यू आएगी और यहाँ पर n की वैल्यू आएगी. ओके, तो काउंट है हमारा 1 पहली बार में और n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10. तो n है 3029 डिवाइडेड बाय 10. तो क्या आ जाएगा ये? 302.9. 302. तो 302. n की वैल्यू आ गई 2. तो ये आ जाएगा हमारा पहले इटरेशन. प्रिंट हो गया. उसके बाद फिर से यहाँ पर गया. n की वैल्यू 0 है? नहीं. काउंट हो जाएगी नहीं. और n हो जाएगा 02 डिवाइडेड 32. बाय 30. 30 आ जाएगा 30. 30. फिर से ऊपर गए. n 0 है? नहीं. फिर काउंट हो जाएगा 3 और ये 30 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 3 आना चाहिए 3. इसके बाद ऊपर गए. काउंट हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 10. 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 0 हो जाएगा. अभी ये n इक्वल्स टू 0 आ गया. स्टॉप. फॉल्स. और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? इतना. ये सब कुछ मिल सकता है. तो लेट अस सी हमने राइट किया है क्या नहीं. ओके, सो दिस इज द वे वी यूज व्हाइल लूप इन पाइथन. अभी एक एग्जांपल है जिसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है और करेक्ट करनी है. अभी एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेड क्या है इस प्रोग्राम में? ये जो नंबर है ना, ये लिस्ट 10, 5, 24, 8 और 6, इनको हमें 2 से डिवाइड करना है और एज ए नंबर्स जिनका रिमाइंडर 1 आता है उनके लिए हमें ट्रू डिस्प्ले करना है और अगर ट्रू आ गया हो जाना. मतलब जो भी नंबर मिलेगा हमें, पहला नंबर
जो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वो ऑड है ना। रिमाइंडर 1 आएगा मतलब ऑड होगा ना वो नंबर। यस 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 मैम। तो मैम। ऑड नंबर मिलेगा तो ट्रू डिस्प्ले करके हमें बाहर आ जाना, और अगर वो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो फॉल्स डिस्प्ले करके हमें ब्रेक हो जाना। तो एक्चुअली यहाँ पर ये इसने ऐसा नंबर ढूंढ के दे, मैम आवाज नहीं आती। हमने ये हेलो। स्टेटमेंट लिखा तो आउटपुट क्या आएगा बोलो? फॉल्स आणि ब्रेक होऊन जाईल, सिंगल फॉल्स. फॉल्स येऊन ब्रेक हो, जर फॉल्स येऊन ब्रेक झालं किंवा पहिला नंबर ऑड असला तर ट्रू होऊन ब्रेक होऊन जाईल. याचा अर्थ काय होतंय, आपण सगळे लिस्टचे एलिमेंट्स एक्झामाइन करतोय का? नाही नाही. उपयोग काय त्याचा? नाही. फक्त पहिलाच एलिमेंट चेक करतोय आणि तो ऑड आहे की इवन आहे ते सांगतोय आणि बाहेर येतो. हो. Isn't it? येस मॅम. आता Yes, मला ma'am. काय पाहिजे की याने काय करायला पाहिजे की इवन नंबर असला तर त्याने फॉल्स डिस्प्ले करायला पाहिजे आणि ऑड नंबर सापडला की ट्रू डिस्प्ले करून बाहेर यायला पाहिजे. सी व्हाट आई वांट, इसने ये जो 10 है, नंबर में 10 आया, ये अगर इवन है तो इसने फॉल्स डिस्प्ले करना है. और फिर येस मॅम. जो नेक्स्ट नंबर है 5, ये अगर सपोज 12 है, इस जगह पर 12 है सपोज, तो फिर से इसने मुझे फॉल्स. फॉल्स डिस्प्ले करना चाहिए. आगे का नंबर आया 24, फिर से इसने फॉल्स डिस्प्ले करना चाहिए. अब आया 8 फॉल्स और 6 फॉल्स, मतलब सारे नंबर इवन है. अगर मैंने ये 5 ऐसे ही रहने दिया तो 10 के लिए इसने फॉल्स देना चाहिए, और ऑड आया ना तो इसने ये, तो मुझे यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा? सिंपली एल्स में का ब्रेक हटा देना है खाली. एल्स Yes, ब्रेक इन द correct. एल्स पार्ट. ब्रेक काढून. ब्रेक एक स्टेटमेंट निकाला एल्स में, तो ये कोड रन किया तो फॉल्स आ रहा है, और अगर हमने ये निकाल दिया तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा. ओके, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दिखाती हूँ, फिर रुकते हैं हम लोग. इज दिस विजिबल? ये स्क्रीन दिख रहा है Yes, ma'am. आपको? आइडियली का है? Yes ma'am. यस मैम. ओके ओके, ये तो सारे वही प्रोग्राम्स है जो मैंने आपको दिखाए थे अभी. ये एक प्रोग्राम है जिससे मुझे आपको दिखाना है. एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिया है, इंपोर्ट रैंडम. हमें रैंडम नंबर्स के लिए इसको यूज करना है, और रैंडम डॉट रैंडम, ये पैकेज में से, ये मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल में से रैंडम फंक्शन कॉल किया है. ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा और ये RNG नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा. यहाँ पर दिया है ये मॉड्यूल RNG स्टैंड फॉर रैंडम नंबर जनरेटर. और ये जो रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर इसी रेंज में से लेना है.
एक्चुअली जहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है वो 1 to 1000 का था। अगर मैंने यहाँ पर 1000 लिया तो वो इतनी बार रन करना पड़ता है, तो नंबर गेस करने का एग्जांपल है ये। तो मैंने वो 1000 का 10 ले लिया है। तो ये 1 और 10 और ये राउंड ब्रैकेट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसमें इसका मतलब होता है कि ये इंक्लूडिंग 1 है और एक्सक्लूडिंग 10 है। 10 नहीं लेगा। रेंज इज फ्रॉम 1 to 9, 10 तक है लेकिन 10 एक्सक्लूड है। तो ये जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा ये 1 से लेकर 9 तक रहेगा। और दो वेरिएबल्स लिए हैं, गेसेस और मैसेज। गेस में 0 दिया है पहले और मैसेज में नल स्ट्रिंग दी है और इनिशियली ये ट्रू है। एक्चुअली ये लॉजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लास्ट में एक एरर देके निकलता है। ये एरर आपको निकालनी है बाद में। ये क्या करता है, पहले हमें एक मैसेज देता है गेस माय नंबर बिटवीन 1 to 10। इसने अपने मन में एक नंबर रखा है। मैं इसको 20 कर देती हूँ क्योंकि 10 जल्दी मिल जाता है। गेस माय नंबर बिटवीन 1 and 20। इसने सिस्टम ने 1 से 20 तक कोई तो भी एक नंबर अब जनरेट किया है और हमें बोला है कि आप गेस करो। आपने जो भी गेस किया वो नंबर ऑफ गेसेस में काउंट करेगा और ये जो गेस है ये एक्चुअल नंबर से, जो रैंडम नंबर है उससे अगर ग्रेटर है, बड़ा है, जो हमने गेस किया वो एक्चुअल नंबर से बड़ा होगा तो ये हमें मैसेज देगा कि इज टू हाई। अगर छोटा होगा तो ये मैसेज देगा टू लो, नहीं तो ये ब्रेक करेगा। तो ये ट्रू है जब तक हम गेस कर रहे हैं, जब तक कि एक्चुअल आ नहीं जाता, ग्रेटर या लेस देन नहीं, वो नंबर आ नहीं जाता तब तक ये गेस आपको करने के लिए बोलेगा। जब तक आप सिस्टम ने जो नंबर रखा है मन में तब तक नहीं दे देते तब तक। ओके, तो ये नंबर गेसिंग का गेम है। लेट्स प्ले इट। एरर आ रही है यहाँ पर। There is an error in your program UI by scanning people to string। ये जो हमने यहाँ पर ले लिया है ये यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट करना बाकी। Guess my number between 1 to 20। ये जो आउटपुट वाला स्क्रीन है ये दिख रहा है आपको? नो नहीं मैम। मैम। नो ठीक मैम। है। नहीं मैम। ओके, अब दिख रहा है? हाँ मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Guess my number Yes, between ma'am. 1 to 20। ओके, तो आप बताओ एक नंबर गेस करो कोई भी। इस सिस्टम ने एक नंबर अपने मन में रखा है, रैंडमली जनरेट किया है, हमें गेस करना है। 15। ओके, 15। 15 इज टू लो, मतलब 15 से बड़ा नंबर होगा। 17। 17। ग्रेट, यू गॉट इट इन 2 guesses। 17 था उसका नंबर। फिर से रन करते हैं। गेस माय नंबर बिटवीन 1 and 20। कोई भी नंबर बोलो। दिसत नाही मॅम। मैं दिख नहीं रहा। स्क्रीन दिसत नाही मैम। नहीं दिसत। ओके, बोलो। 10। 10। टू लो। हाउ मच? 15. 15। टू हाई।
13. Yes, 13. 13. Too low. 14. 14. 6 इट्ला. Great. You got it in 4 guesses. ये गेम है, ठीक है. अब यहाँ पर मैं प्रॉब्लम बताती हूँ आपको. मैंने एंटर किया, एक एरर आ गई, देखो. ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट. ये है प्रोग्राम का नाम. लाइन 66 पर एरर है. इनपुट ग्रेट, यू गॉट इट इन str guesses. ये लाइन है. फाइल स्ट्रिंग लाइन 0. सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड EOF while parsing. ओके, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ग्रेट यू गॉट, यहाँ पर एक एरर है. और दूसरा ये जो है, ये आपकी आ गई सिंटैक्स एरर. अनएक्सपेक्टेड EOF while parsing, ये आ गई सिंटैक्स एरर. ये सिंटैक्स एरर आपको निकालनी है. और दूसरा है सिमेंटिक का प्रॉब्लम. सिमेंटिक का प्रॉब्लम देखो, पहले ये 10 is low आ गया, फिर से रिपीट हो गया 10 is too low. और जितने भी केसेस करोगे ये अपेंड करते जा रहे हैं. तो मुझे ऐसा आंसर नहीं चाहिए. यहाँ पर आ गया ना 10 is low, तो इसने यहाँ पर 15 is too high ऐसे दिखाना है. ये मैसेज फिर से नहीं दिखाना है, इसमें 13 is too low दिखाना है सिर्फ. गेटिंग. और ये जो कोड है, ये आपको पहली असाइनमेंट कंसिडर करके पोस्ट करना है. ये जो हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दिखाने हैं ना, उसके Yes, लिए. ma'am. तो वैसे आप जितने भी प्रोग्राम्स मैंने स्लाइड में लिए हैं वो सब रन करके देखो. और ये है आपका काम. ये जो प्रोग्राम है, आप इसको एक तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स ले लो और इसको करेक्ट करना है. उसने बोला है कि यहाँ पर एरर है, ये स्टेटमेंट में एक एरर है. और ये जो कर रहा है ये मैसेज टू लो, टू हाई, टू लो, हर बार आ रहा है. तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, एक बार ही आना चाहिए. और अगर आप यहाँ पर ब्रेक, कंटिन्यू जो भी यूज करोगे आपकी मर्जी, लेकिन ये आंसर जैसे चाहिए वैसे चाहिए. गॉट इट? Yes, ma'am. And this will be our first assignment. Have you taken screenshot? Ma'am, code नहीं दिखा. हम केवल आउटपुट का स्क्रीनशॉट लिया. नहीं, हाँ नको ना. Take the screenshot. Done, ma'am. Okay. So now I'm stopping recording.